This is film critic Ahwaan from Cineblues, and today we have with us one of the very popular and acclaimed and versatile actresses of Hindi cinema, who has been in the industry for over 30 years. And this NSD graduate has been into various kind of work, including theater, art, fashion. She has conducted theater workshops across the globe, which includes places like Birmingham, Damascus, and she is a visiting faculty at various institutes, including the NIFT, NSD, FTII. So it gives me immense pleasure to have Mita Vashisht ji on our show. Welcome, Mita ji, to our show. Thank you. So, pleasure to be here. Yeah, sure. It's really our privilege to have such a phenomenal actress like you on our show, and you have an amazing body of work which has been there for over 30 years, I would say. So, Mita ji, you appeared in Good Luck Jerry, which is streaming on Disney+Hotstar from last week, and I saw the film. I really liked your work. It has comic shades, and though it's a dark comedy, but yes, your work is really good, and congratulations on that. So, Mita ji, you first worked with Yash Raj Films, that's in Chandni, which released in 1989, and it's been 33 years. It was the first film with Sridevi, and life is like, as it comes in a full circle, you worked with Janhvi Kapoor. You are playing her mom in Good Luck Jerry. Yeah. So how has been the experience? I didn't actually think of it like that, but it was very sweet because, you know, the social media has been making these connections and actually making videos of scenes of Sridevi and myself in Chandni, and then, you know, Janhvi and myself here. I saw that on Facebook. Yes. In a way, it's a very, so whoever has this amazing mind to make these connections and make these videos, it's very moving to see it actually in many ways. So it was very sweet because actually Chandni was in a way my very first commercial film. I was already working with Kaul, Kumar Shani, Govind Nihalani and all, and Shyam Benegal. And Chandni was my first commercial film, and at that time I was very embarrassed because, you know, I was doing lead roles in art films, and here was this film. And so I was like, oh, but I don't want to do it. And Yash said, no, you are already in it and stuff like that. So anyway, हम लोग बहुत सीधे साधे बच्चे होते थे, तो हम लोग कुछ पूछते नहीं थे कि रोल कितना बड़ा है और मुझे पैसे कितने मिलेंगे, ये नहीं. We were just very innocent in many ways. The sweetest thing that happened was that during the shoot of Chandni, मैं किसी को किस्सा सुना रही थी एनएसडी की होली के बारे में, जो होली हम एनएसडी में खेलते हैं. अच्छा. तो वो किस्सा मैं किसी को सुना रही थी सेट पे बैठे हुए, दिल्ली में शूटिंग थी जी. तो it was Sridevi's and my sequence together, and I didn't know much of the, you know, mainstream crowd. And उन दिनों आप ध्यान में रखिए कि उस दिनों ये सोशल मीडिया वगैरह टेलीविजन भी नहीं था, तो जो स्टार्स थे ना, आप उनको सिर्फ या तो मैगजीन के कवर्स पे देखते थे, मैगजीन के अंदर, या फिर फिल्म पोस्टर पे. वो भी फिल्म पोस्टर फोटो नहीं होती थी उन दिनों, वो पोस्टर बनते थे. करेक्ट. तो पहली बार इतने सारे स्टार्स को मैंने रियल लाइफ में देखा, तो मेरे लिए वो थोड़ा इरियल सा था मामला. तो थोड़े दिनों बाद में थोड़ा बहुत घुल मिल गई, लेकिन फिर भी मैं दूर ही रहती थी सबसे. अच्छा. तो मैं बैठी किसी को एनएसडी की होली के बारे में बता रही थी और कह रही थी, यू नो, एक रात पहले हम लोग ये करना, भांग कूटना शुरू होती है बॉयज हॉस्टल में, फिर वो हमें कैंपस में लाते हैं और ये वो, और एनएसडी में ये होता, और एनएसडी में वो था, और एनएसडी में ये मस्ती थी, और एनएसडी में हमने ये सीखा वो सीखा. तो अचानक पीछे से एक आवाज है कि व्हाट इज एनएसडी? Okay. And I turned, and Sridevi was actually sitting right there on a me, but she was having her makeup touched up and all. She used to touch up her makeup, you know, a lot with her by herself. Right. So the team was there touching up her makeup. So I didn't realize that she was actually paying attention to what I was saying. So suddenly there was a soft, quiet voice saying, "What is NSD? Can you tell me about NSD?" So it was very strange. So मैंने थोड़ा बहुत उनको बताया क्या है क्या. Actually, the funny thing is, the first day of my shoot with Janhvi Kapoor on the sets of Good Luck Jerry in Patiala, in that Basti Pathana thing. Now Janhvi is much more chirpy. She's a very sort of vibe, you know, extroverted person in on set. So she's not like Sridevi. Sridevi used to be very quiet and not talk
at all. She's very extroverted. So हम लोग ऐसे खटिया पे बैठे थे, शॉर्ट होने वाला था, तो Janhvi turns to me and says, "So Meeta ma'am, please tell me about NSD." Okay. What NSD? What did you do? What was NSD like? And it was such a strange thing because 33 years ago, Sridevi had asked me the same question. Yeah. And Janhvi, on the first day of shoot, is asking me the same question. Now, Janhvi knew about NSD because of her friend circle. There are people who are from NSD, and I think Ishan Khattar's mother and was married to Pankaj Kapoor. So NSD is very much in the picture. So she knew about NSD, but she wanted to know from me what I had to say about NSD. So ये बड़ा अजीब सा था कि दोनों माँ बेटी ने वही सवाल मुझे पूछा शूट पे कि NSD क्या है, तो उसके बारे में कुछ बताओ. Fantastic. Very strange, yeah. Meeta ji, you have a separate fan base, like across generations, I would like to say, because as I was telling you, like I watched you in Swabhiman, which came during 1995. My mother is also a great fan of yours, of your work, and now you are exploring different kind of roles in the OTT as well. So how do you get so seamlessly connected or get into the DNA of each of the characters that you have done? Because the roles that you were doing earlier, that was also very complex, and the roles now you're doing, that is also very different. And come to think of it, it's been a long time. 30 years is not a small time. How do you keep that going? What is the mantra behind your approach to work? I think it's to keep yourself completely focused on your craft as an actor, the actor's craft. Yeah. Which I think is actually almost a spiritual path for me. Okay. Like the actor's craft, whenever I have gone away from, I've always given everything, whether it's a small budget film or a big budget film or a commercial film or a non-commercial film or an unknown director doing a first time thing for some student film. Right. I do not treat my craft as anything to be made a separation of कि ये ऐसी फिल्म है तो इसमें इतना फोकस होना चाहिए, इतना कंसंट्रेशन या उतनी शिद्दत से करना चाहिए. तो शिद्दत भी कम होती है, उसके प्रति जो आदर और सम्मान है वो वैसा ही रहता है, और जो जिज्ञासा भाव रहता है वो वैसा ही होता है, भले ही मैं किसकी भी फिल्म कर रही हूँ, और वो बहुत जरूरी है. तो अक्सर मैं अपने आप को बहुत सारी चीजों से अचानक दूर कर देती हूँ, जैसे कि आपको अक्सर नेगोशिएट करना होता है कई प्रोजेक्ट्स में कि मुझे इतना स्टाफ चाहिए या मुझे ऐसा, क्योंकि वो है, माने वो सब चीजें आपके एक्सटर्नल्स जो होते हैं वो थोड़ा बहुत असर डालते हैं चीजों पे. तो वो सब मुझे ना, उन सब चीजों से मैं थोड़ा दूर ही भागती हूँ. मैं अपने लिए माने इन चीजों पे मुझे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश है कि जिस आदर और सम्मान से मैं बड़ी से बड़ी फिल्म के, बड़े से बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म के में पेश आती हूँ डायरेक्टर्स के साथ, छोटी से छोटी अननोन से अननोन चीज डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के लिए भी वैसा ही बर्ताव हो मेरा. अक्सर वो मुश्किल हो जाता है बिकॉज कई बारी लोग आपकी जो एक हृदयता है या एक्टिंग को लेके अभिमान नहीं जताना सेट पे, उसको वो आपकी बेवकूफी या कमजोरी समझ लेते हैं. अच्छा. तो कई बारी फिर वो थोड़ा सा आपको थोड़ा जताना पड़ता है कुछ which always I find very disturbing, because for me the space of acting is a very pure space. It's like अगर सारी दुनिया, माने अगर पूरी दुनिया एक तालाब है, तो जो कमल का फूल है ना, जो कीचड़ में भी किसी भी तरह सुंदर और बेहतरीन और एकदम सबलाइम जिसे कहते हैं वो रहता है, दैट इज एक्टिंग, द स्पेस ऑफ एक्टिंग फॉर मी. So that is a space that I keep very pure in terms of my relationship on sets with people, with the team, and also in my life. So somewhere I've always felt that the craft of the actor is not dependent on the success or failure of a project, but it is a separate journey altogether. Definitely. So I stay with that. Okay. So even if I'm working, like sometimes I haven't really thought about it, but some first time जो actors आते हैं या जो junior artists आते हैं कई बारी, अगर उनका मेरे साथ dialogue है,
तो अक्सर होता ये है कि वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैम आपने हमारी इतनी मदद की, आपने इतने प्यार से हमारे साथ रिहर्सल की और हमारे को इतने प्यार से समझाया कि ऐसा कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि अक्सर उनको उतनी तवज्जो दी नहीं जाती है सेट पे कि भैया ये जूनियर आर्टिस्ट को बुलाओ, एक डायलॉग है तुम्हारा, ये बोलना है। अच्छा। तो बट आई फील कि भाई जब तुम और मैं एक फ्रेम में एक साथ है और हम एक दूसरे डायलॉग का आदान प्रदान हो रहा है तो वो एक मोमेंट बनना चाहिए। तो मुझे वो कभी अलग सा नहीं लगा कि मैंने कुछ खास किया है, लेकिन मुझे जूनियर आर्टिस्ट या कोई को एक्टर जिसका इतना तवज्जो है नहीं सेट पे या फिल्म में, वो मुझे कहते हैं कि you know you're so nice, but I don't see it as, I haven't tried to be nice, it's just that is the actor's craft and I totally respect it, so that's how it is with me. So I guess that's how it is. Mita ji, I was trying to analyze your different characters that you have played in different films. Yeah. तो आपने हमेशा, मुझे लगा कि you have an inclination towards playing unconventional roles. जैसे ध्रोकाल ले लीजिए, like ध्रोकाल was one of the earlier films that I saw, and you were really terrific, and the film actually haunted me for quite some days. I was in my school when I saw that, and the role was very difficult and complex to portray. जैसे आपने वो last scene किया है अनु कपूर जी, the last scene is special. it was really haunting, kind of. And फिर गुलाम आया. Gulam, you were unconventional. Like personally, I was feeling that there would be a love angle which will be developed between you and Rajit Kapoor's character. that was my imagination, but it was, you stayed as a judge and a supporter, emotional anchor for Sidhu, Amir Khan ka character jo tha. So all these while you have played unconventional, and Chori में आपने बहुत ही menacing type का role किया. So आपका क्या उस तरफ का वो है, you have a natural drift towards playing complex and unconventional roles? No, I think the roles are very conventional, most of them. It's just that I play them differently. Yeah, I think the lawyers, you can say that in Gulam. Yeah. The lawyer's role in Gulam is a lawyer's role. Right. In fact, बहुत समय तक मैं वो रोल को कमिट ही नहीं कर रही थी. मुझे अंजुम राजाबली जो राइटर थे फिल्म के, वो मेरे पीछे पड़े थे कि महेश भट्ट से मिल लो, तुमको ये रोल करना. मैंने कहा लॉयर का रोल कौन करेगा भाई, और तुम्हारी कमर्शियल, उन दिनों कमर्शियल फिल्म और वो आर्ट का डिवाइड बहुत स्ट्रॉन्ग था. एक तरफ मनी कॉल, कुमार शानी, दूसरी तरफ कमर्शियल फिल्म बोलते थे. हिंदी फिल्म, बॉलीवुड नाम उस समय इजाद हुआ नहीं था, वो तो 90s में आया, लेट 90s. तो मैंने अंजुम से कहा, मैंने कहा आप लोग तो, मैंने क्या रोल होगा लॉयर का, मैंने हिंदी फिल्मों में देखा है वो, जहां आपको फिल्म छोटी करनी होगी आप पहले तो लॉयर का रोल काटते हो, और वो क्या रोल होता है. तो उसने कहा नहीं ये मैंने लिखा है और ये बहुत अलग है. ये जैसे भगवत गीता में अर्जुन और कृष्णा का रिलेशनशिप ऐसा, तुम जो हीरो है वो अर्जुन है और तुम उसकी कृष्णा हो. राइट. तो मैंने कहा कौन है हीरो, ये भी मैंने नहीं पूछा था. मैंने कहा हीरो कौन है, तो उन्होंने कहा आमिर खान. तो फिर मैंने सोचा थोड़ा, मैंने कहा अच्छा आमिर तो अच्छी एक्टिंग करते हैं. मैंने कहा हाँ, ही इज एन इंटरेस्टिंग. सो देन आई वेंट एंड मेट महेश भट्ट. बट द थिंग वाज, उसमें एक मोमेंट है जब वो गुंडों के den में जाती है, मेरा जो कैरेक्टर है जी लॉयर का, और वहां पे वो शरद सक्सेना वाला कैरेक्टर उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है. रौनक सिंह, हाँ रौनक सिंह. तो वो एकदम ऐसे हो जाती है एक सेकंड के लिए. तो वो एक्चुअली जोर से चिल्लाए थे इस रिहर्सल के दौरान, और मेरे कानों में ऐसे हो गया था. तो मैंने उसको पकड़ के रखा कि ये ऐसे, क्योंकि जो लॉयर है वो एक इंसान भी है, नॉर्मल औरत है, और वो गुंडों के den में जा रही है. अब थोड़ी तो घबराहट होगी उसे कहीं ना कहीं अंदर, भैया कोई कुछ गाली गंदी सी बक दे कुछ तो तो आई ऑलवेज केप्ट the human element of my characters in place, not that because she's a lawyer and she has a court order she can become, she's not Salman Khan then. Right. She will always be a woman who feels a little unsure about entering this space, which is not a nice space for a person. So I remember Rani Mukherjee's father also, क्योंकि उसके बाद वो एक कास्ट पार्टी सी हुई थी, मुकेश भट्ट ने रखी थी अपने घर में. तो रानी मुखर्जी के फादर, ही सच अ जनरस मैन, आई थिंक राम मुखर्जी. हाँ, he was so sweet. I mean, this was his daughter's major launch, big film. Right. She was going to make it big with this film. And he's telling me, एक्टिंग तो ये देखनी चाहिए, क्या तुमने सीन किया है, क्या तुमने रिएक्शन दिया है वो गुंडे का, ये बारीकी, इसको कहते हैं एक्टिंग रानी, इसको कहते हैं एक्टिंग. So imagine, so he was among the first people who actually noticed the small barikis of nuances and. So even a role like Chori, it could have been played in a very obvious manner.
But I always, for myself, I find a different logic to play each of my characters, you know. So I don't know how unconventional the role per se is. I think I bring a quality to it, which is again the actor's craft. I'm not taking personal credit for it. But it is really the actor's craft that makes me think of a character, not just from the point of view of the story, but उसकी sociology क्या है, उसका background क्या है, उसकी geography क्या है, वो कपड़े कैसे पहनती है, you know. And I don't mean this in a realistic, वो जो realism की बात होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जिस आज जो हम लोगों आम जिंदगी में भी अगर हम देखें तो किसी के उठने बैठने, बातचीत, एक्सेंट, रहन सहन से उसका काफी कुछ पता चलता है, भले ही हम उसे पर्सनली ना जानते हो. तो मेरा इन चीजों पे बहुत फोकस रहता है, यू नो. तो इसलिए जो रोल्स है वो जरूरी नहीं कि वो अनकन्वेंशनल. जैसे आला, एक गुलजार साहब का आप देखेंगे सीरियल, वो बहुत फेवरेट है बहुत लोगों का. वो किरदार एक सीरियल था, उसमें आला करके एक स्टोरी है. वो किरदार सीरियल में गुलजार साहब, तो उसमें ओमपुरी ने सब रोल किए थे मेल. तो एक उनकी और मेरी स्टोरी है जो ध्रुवकाल के दौरान हमने शूट की. वो 4 दिन का शूट, 3 दिन का शूट ध्रुवकाल के दौरान था. उस ध्रुवकाल में ओम और मैं पति पत्नी बनते हैं. इसमें हमारा एक लव एंगल है जो कभी बहुत सटल सा है. वो बोलते नहीं एक दूसरे को, क्योंकि वो उसके घर में एक्चुअली काम करती है. वो अमीर आदमी है, दुबई से आया. वो उसके घर में उसकी माँ के साथ लगी रहती, काम करती. तो बड़ा एक इट्स वेरी पावरफुल लव स्टोरी, बट दे नेवर एक्सप्रेस इट. सो और उसी किरदार में उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने ओम की डॉटर का रोल किया. तो मैं ओम को मजाक कर रही थी, मैंने कहा ओम अगर एक और शूटिंग हम करें ना इस दौरान, तो अभी तुम्हारी बीवी से मैं तुम्हारी प्रेमिका बनी हूँ, प्रेमिका से मैं तुम्हारी बेटी बनी हूँ अगले उसमें. अब मैंने कहा अब तो बस पोती बनना ही बाकी है. तो ही वाज वेरी चुप हो चुड़ैल गई थी. तो कहने का मतलब है इन्होंने आला गुलजार साहब चाहते थे कि मैं वो कैरेक्टर के डायलॉग एक तरीके से बोलूं जैसे उनका तरीका है बोलने का. यू नो बहुत वो बड़े लहजे में और बड़े आराम से डायलॉग बोल बातचीत करते हैं, और वो चाहते थे आला भी उसी तरह बोले. मेरा इंटरप्रिटेशन था कि वो एक चुलबुली सी लड़की है, तो बोलने में भी उसका चटर पटर आना चाहिए. तो मैं अपनी जिद पे अड़ी रही. वो मुझे कह के थके कि अरे मीता जरा उसको बोलो कि अरे मियाँ को चूना लगा रही. और मैं कहा हम तो आए थे तो चूना लगा रहे. तो वो थोड़ा स्लो कर दो. मैं कहा गुलजार साहब स्लो नहीं होगा. तो फाइनली उन्होंने कहा अच्छा करो, तुम अपनी तरीके से करो. और फिर उनको बाद में उन्होंने इतना उनको अच्छा लगा, क्योंकि जो स्टोरी के राइटर थे अहमद नजीम काजमी साहब, जो पाकिस्तान के बहुत मशहूर थे, गुलजार साहब के दोस्त भी थे. उन्होंने उनको बल्कि कहा आला देख के कि तुमने मेरी आला कहाँ से पकड़ी, मैंने कहाँ से खोज के लाए, तो बिल्कुल वो है जो मैंने लिखा है. सो यू नो एक जिद पकड़ लेना कभी कभी कि आपका लॉजिक एज एन एक्ट्रेस ये है कैरेक्टर को लेके, तो मैं अक्सर जिद पकड़ लेती हूँ. मैं आई डोंट ट्राई टू प्लीज द डायरेक्टर. आई नेवर प्ले टू प्लीज द ऑडियंस. मैं जिद पकड़ लेती हूँ कि कैरेक्टर तो ये है तो ऐसा ही है. मैंने डायरेक्टर को चाहिए वो है, उसको टेम्परामेंटली नहीं चेंज करना है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं तो वो मैं पकड़ लेती हूँ, फिर मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ. फिर एक बार गोविंद निलानी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो प्रिंट हुआ था उन दिनों जब ध्रुवकाल वाज माय थर्ड फिल्म विद हिम. सो ही सेड कि अक्सर मीता जिद पकड़ लेती है, और उस समय आपको लगता है कि there's a certain madness in what she's doing. Right. And later on you realize when you see it that she was right. Right. You know, so I've also had very generous, wonderful directors who actually allowed me to flower in the character. मैंने डायरेक्टर का भी योगदान बहुत जरूरी है कि वो आपको करने दे. वो ये जिद ना पकड़ ले कि नहीं ऐसा ही होगा, नहीं तो सॉरी नहीं होगा. यू नो, तो मैं अलग से चीजों को करती हूँ और मेरे डायरेक्टर्स भी मुझे करने देते हैं, तो वो अच्छी बात. इसलिए अलग लगे. अगर आपको ये पूछा जाए कि आपका सबसे फेवरेट डायरेक्टर कौन है, बिकॉज यू हैव वर्कड विद मेनी अक्लेम्ड डायरेक्टर्स, मणि कौल हो, गोविंद निहलानी हो, विक्रम भट्ट, महेश भट्ट, आपका फेवरेट पर्सनल फेवरेट कौन है? I know it is difficult to choose one, but फिर भी no, I don't actually have first. You know, the thing with every project is that मुझे डायरेक्टर के प्रति एक श्रद्धा होती है. वो श्रद्धा उस टाइप की नहीं कि आप सर सर कहें या जी जी कहें या उनके साथ घुलना मिलना चाहते हैं. जी. वो श्रद्धा ये होती है कि उसकी सोच क्या है और वो क्या चाहते हैं, और उनकी सोच को मैं किस तरह से भरीपूर्ण तरीके से
इंटरप्रेट करूं और अपनी अदाकारी से या उसको कैसे रियलाइज करूं, तो ये होता है। तो मुझे अलग अलग डायरेक्टर्स, माने अगर आप देखें मनी कौल की जो फिल्में हैं, कुमार की जो फिल्में हैं, गोविंद निहलानी की जो फिल्में हैं, कुमार शानी, या इवन महेश भट्ट जी, Mahesh Bhatt also gave me so much space while performing that sequence with the आमिर, जिसमें मैं उसके बाल ऐसे ऐसे कर देती हूँ। तो शुरू में मुझे लगता है आमिर को थोड़ा अजीब लगा कि मेरे बाल कैसे ऐसे बिखेर दिए उसने। तो वो महेश जी की तरफ मुड़े देखने के लिए कि ये क्या, तो महेश जी को तो इतना अच्छा लगा, उन्होंने तुरंत वहां से हट गए। आई डोंट नो व्हाट द उन्होंने एक गाली सी दी कि आई डोंट नो शी डिड बट इट वाज ग्रेट एंड चले गए। कि उन्होंने उनको उस चीज पे बातचीत ही नहीं करनी थी कि मुझे ये मोमेंट अच्छा लगा, एक्ट्रेस ने कुछ कर दिया और मुझे बस यही रखना है। तो मुझे हर डायरेक्टर के साथ काम करना अच्छा लगा है, एंड आई कांट ask say which is my favorite. In real life, yes, I've had deeper friendships with Mahesh ji. For example, it was always formal. I never went to his house or met him after sets. But with Kumar, Shani and Mani Kaul and all, it was a social group that we had, a big group where there were painters like Akbar Padamsi and Geev Patel and writers, like Kumar ji के साथ एक बार मैं निर्मल वर्मा के घर ले गए मुझे, वो दिल्ली में हम लोग थे, तो मैं निर्मल वर्मा के घर जा रहा हूँ, मैं चलना है मेरे को, ऑफ कोर्स कुमार। तो हम लोग तो मैंने ऐसा उनके साथ एक अलग रिलेशनशिप था, जो एक जब आप एक यंग जिज्ञासा से भरे स्टूडेंट लाइक होते हैं ऑलमोस्ट, इवन दो आई वाज ऑलरेडी एन एक्ट्रेस प्रोफेशनली, बट आई वाज ऑलवेज लाइक अ स्टूडेंट। सो आई वुड लव हैंगिंग आउट विद Mani and Kumar and all of these directors and Govind, उनके ऑफिस में जाके बैठ जाती थी भले कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि कुछ ना कुछ that was like family. But in the commercial space, it was never like after shooting that this was like family, It was like shoot खत्म हुई, आपने अपना प्रणाम किया. But I've loved working with each person very much. Because wherever the role no, sorry. नहीं हो गया. Do you also find the same passion and approach in the new breed of directors, जैसे विशाल फूरिया हो या सिद्धार्थ सेन हो, छोरी? Oh yeah, very much so. Yes, even with Vishal Puriya for Chori, he was very particular about, and he knew exactly what he wanted. He's a very great craftsman. He knows his shots. And yes, but one thing has changed. You see, over 30 years, when you start out, all the directors are 20 years older than you. Okay. So you're a young actress. So you have a different relationship. You can get away with a lot of things. Correct. They used to call you Meeta. Now the directors call you Meeta Ji. So even if you want to remove the G, you can't. They still call you Meeta Ji. Okay. So now the thing is, the directors are all like 10, 15 years younger than me. Maybe even 20. Right. So वो relationship थोड़ा बदल जाता है, So you realize somewhere that you are kind of senior. They are more comfortable in a joking space with the younger actors or younger actresses. Right. उनको थोड़ा ease होता है. मेरे साथ बहुत जी हो जाता है. अच्छा. अब मेरे दिमाग में भले ही मैं 27 साल की हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए तो जी लग गया अब, तो उस तरह की फिर आप उस तरह की इंटरेक्शन, जैसे अगर समटाइम्स आफ्टर शूटिंग सब लोग कहीं जा रहे हैं, तो लास्ट में मीता मैम आप चलोगे हमारे साथ? तो मैंने कहा भैया मैम लगा दिया, अब तुम बियर पीने जा रहे हो, मैं भी अगर बियर पीऊंगी तुम्हारे साथ तो तुम लोग वो खुल मिल के मस्ती नहीं कर पाओगे. राइट. तो मैं अक्सर मना कर देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है वहां फिर मैम मीता जी ये सब हो जाएगा, तो इनको जो मस्ती करनी जो हम लोग करते थे we were their age, so I realized that it's not me but it's the world, that the age that has graph has changed. Right. So I really can't hang out with my directors, which I could as a younger actress. Now I can't, because for them it becomes one of adab and and that's more the young FTI or whistling with directors. They have become part of my social life. Like they'll come home, they'll have lunch, or they'll help me on a project that I'm doing. Then we'll go and sit down and chat. They also bring a lot of their issues as young directors who are struggling to become part of the commercial film while trying to keep their individuality. ये बड़ी मुश्किल चीजें होती है ना all youngsters के लिए, कि हम हिस्सा भी बनना है और लेकिन हिस्से में हम कहीं मिट ना जाए इस हिस्सा बनने में. तो ये सब
So more like now, more like a big sister to most of them. They'll ask me for life advice and things like that. Like that. So that has changed. आपने थिएटर में इतना साल, you gave so many years to theater and now you are conducting theater workshops also. So do you find that theater is the most liberating form, liberates you the most as an actor, as a performer? I don't think I gave theater my life. I think theater gave me a life. Acha. It's the other way around. Acha. Okay. You know? So theater is again the path from where your journey begins. मेरी journey कम से कम theater से शुरू होती, उसी में जड़े हैं जी, उसी में जो सब सोच विचार की धारा और लोगों से मिलना जुलना जुड़ना, कि एक दुनिया जो है वो आपसे परे भी है लेकिन आपके भीतर भी है। लोग जो है वो आपके जीवन का हिस्सा भी है लेकिन आपको हर किसी को उसकी स्पेस देनी है और अपने आप भी अपनी स्पेस रखनी है। ये सब आपको थिएटर में ही सीखने को मिलता है। और ऑफ कोर्स जो रियाज होता है, रियाज की जो एक्टर की रियाज की जगह है वो केवल थिएटर। अच्छा, वो जिम जाके 3 घंटा वर्कआउट करना नहीं है। राइट। जैसे आपने ये नुएंसेस के बारे में बोला, यू ब्रिंग इन दोस नुएंसेस इन योर कैरेक्टर, थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कभी कभार कि आपका अगर ये थिएटर बैकग्राउंड नहीं होता तो आप शायद ये नहीं कर पाती? डिड थिएटर, द एक्सपीरियंस इन थिएटर, थिएटर मैंने चुना, मैंने एमए इंग्लिश किया था, उसके बाद मुझे लगा मुझे अगर एक्ट्रेस बनना है तो बहुत कुछ सीखने को, क्योंकि उस समय तक मैं समझ गई थी मोहन मालवीय जी के साथ जो हमने वर्कशॉप्स की थी थिएटर की, तो उससे मुझे समझ में आया कि ये तो एक्टिंग की दुनिया तो बहुत बड़ी है। इसमें आपको हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। आपको लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए, पोइट्री की नॉलेज होनी चाहिए, रिदम की नॉलेज होनी चाहिए, स्कल्पचर की नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, यू नो डिफरेंट कल्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, कितने डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोसाइटी की नॉलेज होनी चाहिए, तब कहीं जाके आपका एक्टर का जमअप और अपने लाइफ को समझने का आपका एक माने वो एक स्किल होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह से सोच रही हूँ और क्यों सोचती हूँ और मैं असल में क्या हूँ। अक्सर हम लोग अपने लिए एक ढांचा से ओढ़ के बैठ जाते हैं कि हम तो ये है भाई, और फिर हम अपने आप को एक तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक्टर जो है वो एक अपने आप को खोलता जाता है कि मैं क्या हूँ एक्चुअली। अभी अगर मैंने ये कहा तो मेरा असल मोटिव क्या था, और अक्सर वो बहुत सुंदर मोटिव नहीं हो सकते हैं। आप अपने आप को कह सकते कि अरे मैं तो इस मुकाम पे बड़ी सेल्फिश निकली, या मेरी सोच अच्छी नहीं है यहाँ पे, या ऐसा। तो ये सब एक लेवल की जो सच्चाइयां हैं जिनको आपको मुंह के शीशे, जिसमें आपको अपना चेहरा शीशे में जो है हर समय वो देखने आना चाहिए जी, अंदर का आईना। तो ये सब चीजें थिएटर से ही आपको माने आप वहां से सीखते हैं। और हो सकता है आप जो आपको जो जिस चीज को आप खोज रहे हैं वो भी आपको खोजती है। तो मेरे अंदर वो था ऑलरेडी, जिस वजह से मुझे आकर्षित किया थिएटर में, पढ़ाई लिखाई ने आकर्षित किया कि इसमें तो और जाना है और जाना है और जाना है, ये तो ऐसी चीज नहीं है। और उस समय हमारे बहुत महारथी टीचर्स भी थे, इतना जरूर कहा जाएगा कि हर फील्ड में, वेदर इट वाज लाइटिंग और या एक्टिंग के टीचर्स या जो अलाइड क्राफ्ट्स हैं। जैसे कि अभी आज भी अगर मुझे कॉस्ट्यूम दिया जाए तो मैं तुरंत बता देती हूँ कि नहीं नहीं ये इसका गला थोड़ा सा ऐसा करना है, आधा इंच यहाँ ले जाइए। आप तो मैम तो है, हाँ, फैशन I know everything about everything. I can stitch my own clothes also, you know. Right. Thank you, Mita जी। मिता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स रियली ग्रेट प्रिविलेज टू हैव यू ऑन आवर शो। मैंने सोचा नहीं था कि 25-27 साल स्वाभिमान के बाद मैं आपको अपने शो में इंटरव्यू। क्या बात है। Thank you so much. This is so amazing. And you are really doing great work, and we wish you all the best in all the Thank you, Ahwaan, and wish you all the best. Thank you for you. this very nice video. All the best. Thanks a lot. Thank you, Mita ji.